Yeah, this is my 15th episode of Master on Friday. I will upload it on Facebook at 4 p.m. only, but it is just 12 now, and I'm doing it in advance because there was a massive cleanup operation of my room and my surroundings, so got very tired. So I would make it short today, make it short, and possibly try to avoid any domestic Indian political topic. It's better to avoid all this. And but one thing I must focus, because I always focus on current news. Current news is that world is has entered a, I would say, orange zone, world war, because of Israel's idiocy of killing Hamas chief precision by whatever. It's apparent that Netanyahu is hell bent on continuing the war because he wants America to directly interfere. And directly, America would interfere only when Iran and Hezbollah attack Israel. So that's when America would come in, and that's what Netanyahu is banking on. Anyway, so let my today's topic be on a very neutral topic, very neutral topic. So the neutral topic I thought was, out of so many topics, I have to shortlist some topic. So on this topic, I did a lot of research for last 40, 50 years. I've been doing it. I accidentally came into touch with, there was an article I wrote, lunar effect on human emotions. Lunar is moon, Chand. Now, when I wrote that article long time back, and I got a lot of publicity, a lot of international exposure, that was lunar effect on stock prices. So I remember, because it's long back I did that research. So it was again primarily under the leadership of some foreigner, Michael Jensen or whoever. I'll find out and put that research also. But after that, 40 years have passed, and maybe my knowledge also has improved a lot in that effect. So let me try to tell you by common sense. Try to link the common things. You see, moon is a part of Earth. Some accident happened, and life हमारी जो Earth पे है, Earth is having life because of that impact, because of that lunar impact. So कोई चीज़ आके टकराई होगी, बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा, तो 1/6 of the Earth, 1/6 broke away, and because अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर 6 times ज़्यादा थी, तो वो मून उसके इर्द गिर्द ही उसने अपनी उसे एक ऑर्बिटल, एक बड़ी स्पेसिफाइड ऑर्बिटल है, उसमें उसने चला दिया. बट मून का इफेक्ट उतना ज़्यादा है कि मोस्ट ऑफ आवर त्योहार, ऑल रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम स्पेशली, इस्लाम तो बना ही लूनर कैलेंडर से है. एंड उसको जब मैंने लिंक शुरू किया कि मून का असर इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है हमारी लाइफ पे, तो देन आई स्टार्टेड गेटिंग दैट. Once I was sitting in Bombay near the ocean, and I was thinking where thoughts come from. So then I saw the waves are coming from the ocean, one by one. So where the waves are coming from? So they origin, it's silent. Ocean is generally silent. But then one wave after another comes. Those waves can be very small, mild, or they can be like a hurricane. So suddenly then I started linking कि जिसको हम ओशन में बोलते हैं इंग्लिश में हाई टाइड एंड लो टाइड. जो ओशन के पास रहते हैं उनको तो पता है ना, हाई टाइड आती है तो पूरा समुद्र का पानी ऊपर तक आ जाता है. हाई टाइड, एक्साइटमेंट, ओशन बिकम्स एक्साइटेड. एंड लो टाइड, जिसको हम हिंदी में ज्वार भाटा भी कहते हैं, ज्वार और भाटा. जब लो टाइड आती है तो पानी पीछे की तरफ चला जाता है, एंड ओशन बिल्कुल शांत हो जाता है.
Then I started thinking that if moon can have such tremendous impact on the waters, 2/3 of the earth is water, you know that. More than that, in fact. All the oceans put together. And if you put North Pole and South Pole, even that is water because that's in frozen form. Icebergs. So when moon has such a huge power over the water, then I started thinking कि हमारी अपनी भी हर इंडिविजुअल की लाइफ में you will vouch for it कि हर 24 आवर्स में आप देखोगे हमारे अंदर भी, बिकॉज हम भी तो पानी के बने हैं ना, हमारी बॉडी भी तो आई थिंक 2/3 इज वाटर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. चेक इट अप ऑन गूगल. आई एम नॉट श्योर. आई एम जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम माई रफ ABC लैंग्वेज एंड देन आई ट्राइंग टू टेल यू द इफेक्ट that moon has on our emotions. And when I started studying deep into it, oh my God, the more I studied, the more I realized yes, moon has a tremendous impact on everything. On the growth, on our coolness. हमारा moon फिल्मी रोमांटिक तो आप जानते हो, चांद के ऊपर हमारे I think 99% of the filmy songs, Indian filmy songs are on moon. And globally, moon has a huge romantic impact on everyone. Because it creates that romantic, you know, चांद के ऊपर बहुत गाने बने, सैकड़ों हजारों गाने. Some of them I really like. So coming back to my Jwar Bhata, high tide, low tide, then when I started studying mental disorders, and mental disorders, I told you I've done for last 40 years, I have studied all mental disorders. So many of them, I studied deeper and deeper and deeper. And बट उनको ब्रॉडली मैंने आई थिंक किसी और एपिसोड में भी कवर किया था कि मेंटल डिसऑर्डर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फोबिया एंड मैनिया. मैनिया इज इरेशनल लव, इरेशनल एक्साइटमेंट, जिसकी कोई रीजन नहीं होता बट होता है हमारे अंदर. एंड फोबिया इज इरेशनल फियर, डर लगता है हमें, किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है. हाइट का डर, वाटर का डर, कॉकरोच का डर, छिपकली का डर. औरतों को भी होता है, हमको भी एलर्जी होती है किसी ना किसी चीज़ से. सो जब मैंने लिंक करना शुरू किया, देन आई रियलाइज्ड दैट दे सम मेंटल डिसऑर्डर्स आर ऑफ वेरी सीवियर. देयर आर 5 stages. I told you before also in some episode. There are 5 stages of any disorder, whether it's schizophrenia or whether it is OCD, obsessive compulsive disorder, or is it narcissism, self-love, too much of love. हमारे अंदर ईगो जो मैं है, narcissism is the basis for that. We all love ourselves. Howsoever others may call us beautiful or not very beautiful, in fact ugly also many times. But internally we are all same. So then we have a chronic hunger for attention. We all want love, need love, attention. बच्चे को भी attention की ज़रूरत होती है. So attention deficit syndrome is another mental disorder. तो इन सबको 5 कैटेगरीज में मैंने क्या पढ़ा था कि it can be mild. Mild तो सभी के अंदर होता है. We all are patients. We all are mental disorders. Then it is severe, then it is acute, then it's chronic. और वो जब चीज़ बहुत बढ़ जाती है देन वी से इट्स फेटल स्टेज आ गई, डेथ की स्टेज आ गई है. और चीज़ का अंत मृत्यु ही है ना. तो आप गूगल में अगर सर्च करो, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ. मैं आपको थोड़ा सा आई विल सेट यू थिंकिंग ऑल्सो. आई विल नॉट आंसर एवरी क्वेश्चन. कि जब मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में, आजकल गूगल तो सब ट्रांसलेशन भी दे रहा है, आप सर्च करिए कि चांद का हमारी भावनाओं के ऊपर क्या असर होता है. तो ब्रॉडली मैं आपको अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अंदर भी एक हाई टाइड आती है, एक लो टाइड आती है. हाई टाइड आती है कि 24 घंटे में एक पीरियड साइकिल ऐसा आएगा जब आपकी थॉट्स एकदम ऊपर चली जाएंगी, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, एक्साइटमेंट. उसी पे मेरा आर्टिकल था ल्यूनर इफेक्ट का. ल्यूनर के भी 2 हिस्से हैं ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, असेंडिंग मून, डिसेंडिंग मून. 15 दिन वो जो पूर्णमासी तक चलता है, फिर पूर्णमासी से वो घटना चालू होता है, फिर वो अमावस की तरफ आ जाता है. तो ये 15-15 दिन का एक गैप है.
सो असेंडिंग मून जो है आपको हाई टाइड की तरफ ले जाएगा, डिसेंडिंग मून ब्रॉडली एवरेज आपको लो टाइड की तरफ ले जाएगा। बट विद इन 24 आवर पीरियड आपके अपने अंदर को नोट करो, आप बगैर किसी रीजन के एकदम कुछ समय के लिए खुश हो जाते हो, एक्साइट हो जाते हो, वेरी हैप्पी, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी होपफुल। मैं आज 4 घंटे पहले मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग गया कि नहीं, अगर मैं अभी लेट गया, क्योंकि मेरे तो थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, एंड क्योंकि मैं हर चीज़ को एडवांस में करके पूरा करना चाहता हूँ। 74 साल का हूँ मैं, तो अपनी हर दिन को, हर सांस को आखिरी सांस मान के चलता हूँ। सो ये मेरी जो मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ, यही फिर मेरी मेमोरीज रह जाएंगी, और क्या है, ये मेरी यादगारें हैं जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो इस टाइम मैं थोड़ा एट पीस फील कर रहा हूँ। रात को 10 साढ़े 10 बजे मैंने अटेंड किया था डिवाइन कॉल दादा श्री जी के साथ, और उनसे जब मैं उनके टच में जब भी आया हूँ, एकदम मेरी लाइफ में बड़ा अच्छा चेंज आया है। तो एट पीस काम आना चालू हो गया मेरे अंदर। डिवाइन कॉल है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है हमारी। तो जो हमारे को हाई टाइड आती है उसमें हम एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, अपने को हम दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। बट जब डिसेंडिंग थॉट भी आते हैं, और जनरली वो डस्क के टाइम आते हैं, डस्क जब सूर्यास्त हो रहा होता है, डॉन एंड डस्क, डॉन इज सूर्योदय, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सुबह 3 बजे 3:30 बजे, आजकल मेरी भी नींद खुल जाती है। तो डस्क के टाइम पे जो लो टाइड आती है, उस टाइम हम दिया जलाते हैं, अंधेरा होने लगता है। हर कंट्री का अलग अलग है, वो इक्वेटर के अलग है, फिनलैंड का अलग है, सबका अलग है, कि इंडिया का अलग है। कई कई जगह तो 18 घंटे रात रहती है, और कई जगह 18 घंटे दिन रहते हैं। फिर तो मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ आज, आप मेरे कहने से ये एक्सरसाइज करिए, आप गूगल पे थोड़ा सा खुद सर्च करिए, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि आप देखोगे चांद का असर हमारी लाइफ पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब आप किसी को इर्रेशनली बात करते देखो, जैसे अब ये कल हुआ है, ये वर्ल्ड वॉर का क्या है, ये नेतन्याहू का दिमाग खराब हो चुका है ना, पता नहीं किस चीज़ को उसको एक्साइटमेंट है, क्या है, या फियर है कि हम ज्यूज़ हैं, नंबर में हम बहुत कम है, तो जब तक हम पूरे अपने एरिया को दबा के नहीं रखेंगे, उस चक्कर में फिर ईरान से पंगा तो गलत हो जाएगा ना। तो वर्ल्ड वॉर की आहट अब सुनाई दे रही है। अगले 48 घंटों में, 72 घंटों में एक अब कुछ तो ईरान करेगा जब लाल झंडा पर फहरा दिया गया है। हम इंडिया के लोग वो गज़वा हिंद से डरते हैं मुसलमानों के, कि ये हम पे अटैक करेंगे। ये इरेशनल फियर्स हैं, इरेशनल फियर्स, नॉनसेंस फियर्स। तो जो हमारी बॉडी में लो टाइड हाई टाइड है, वो हर प्रजाति में है, पौधों में भी है, पक्षी भी, आपको नहीं पता, सारी सारी रात उड़ते रहते हैं। जब मुझे पता चला मैं बहुत हैरान हो गया कि सोते हुए भी उड़ते रहते हैं वो। साइबेरिया से चल के आते हैं हमारे भरतपुर में, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, तो यहाँ पे आके फिर वो, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था कि वो नींद के टाइम वो कैसे, कौन उन्हें डायरेक्ट कर रहा होता है। वो फिर ल्यूनर इफेक्ट है, उसको भी आप ढूंढिए, कोशिश करिए आप। तो आज मैं आपको कोई आंसर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। हमारी हर चीज़ जो मैंने उस टाइम किया था, मुझे याद है कि असेंडिंग मून के टाइम पे शेयर प्राइजेस 100 कंट्रीज को हमने स्टडी किया, बढ़े थे, शेयर प्राइजेस बढ़ते हैं, क्योंकि मैक्रो लेवल पे भी तो सबको वही हाई टाइड आई हुई है, होपफुल। और शेयर प्राइसेस जो घटते हैं वो डिसेंडिंग मून की तरफ घटते हैं। तो हमारे सारे थॉट्स भी तो ल्यूनर इफेक्ट से ही हैं। तो आज बस यही 14-15 मिनट का हो गया है, आज मैं इतना ही काफ़ी करता हूँ, और इसको मैं 4 बजे अपलोड करूँगा। अभी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और थोड़ा सा आज मैं उपवास से रखूँगा, लंच भी शायद नहीं लूँगा, कोई लाइट सा लंच ले लेता हूँ। आई विल टेक कोल्ड मिल्क, बनाना और मैंगो और समथिंग, and then take some rest and then upload it at 3:30. by that time मेरे को भी रेस्ट मिल जाएगा। बट सफाई से मेरे को, you can see all my beds and all, everything is very neat। मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सफाई अभियान मेरे दिमाग में आया ही है। सो इन्वर्टर का है, एंड लेट्स सी, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लांट्स के साथ भी बहुत कुछ होता है। तो क्योंकि मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, तो मैं दूसरे की, मैं इमोशनली अपने को इंटेलिजेंट मानता हूँ। इमोशनली आई एम इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट की डेफिनेशन ये होती है कि जो अपनी डिस्टर्ब हुई इमोशंस को काबू रखे, और अपने आसपास के लोगों की जो बिगड़ी हुई इमोशंस हैं, और सभी की बिगड़ी हुई हैं इमोशंस, सभी की, हर 10 मिनट में मैं देखता हूँ, उनको भी वो मैनेज करना सीखे।
और बिगड़ी हुई इमोशंस को मैनेज करने का क्या तरीका है भाई? जो भी इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, इरेशनल बात कर रहा है, तो मेरा पहला रिएक्शन है उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। ओके ओके ओके, यस यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसीलिए पागल आदमी से, गुस्से वाले आदमी से, बॉस से, जज से, पुलिस वाले से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। बस वो जो कहें यस सर। और टेनिसन ने एक जो पोएम लिखी थी, वो पोएम मैं रियल लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ। द मार्च ऑफ लाइट ब्रिगेड जो फौजियों के लिए थी, वो यू आर नॉट टू रीजन वाई, यू आर नॉट टू मेक रिप्लाई, यू आर बट टू डू और डाई। तो जो मैंने डू करना था तो डन हो गया, और डाई अगर होना है तो अभी हो सकता है मैं नींद में ही हो जाएगा मेरी डेथ। सो थैंक यू आप सबको मेरी वाह वाह। और गूगल पे आप सर्च जरूर करिएगा कि ल्यूनर का हमारे इमोशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। आप भी थोड़ा ढूंढिए और मेरे को सेंड बैक करिए, क्या पता आपके नज़रिए से देखूं चीज़ों को बहुत अच्छा लगेगा। सो आप सबको मेरी वाहिगुरु, आप सबको मेरी थैंक यू, बाय।